Good morning, class. Today I will discuss your poem, first poem, that is Dust of Snow. It is written by Robert Frost. So first I will brief introduction first, then afterwards a para-wise description we will do. And if it is left, time is left, then we will also discuss it, some question answer. Okay. Now see. Beta, this poem in this poem, every you see, if a tree is there, then it is also compared. Crow is there, it is also compared, and the snow is also compared. That means this is a symbolic poem. The tree is also having some symbol. The snow is also having the symbol, and even the crow is also having the symbol. So it's a symbolical poem. So if there when the question answer will come, just write about it, that is a highly symbolical poem. Now see, as its surface, it's tell very trivial incidents. See the incidents, if you see, a poet is standing beneath a hemlock tree. This hemlock tree is beta poisonous tree, so the poet is standing under it, okay, beneath, because its position is there, the poet position is there, that's why here beneath is used. And it's very cold and the snow is falling and a crow is up sitting on the branch. Now its wings get covered with fine particles of the snow. See, the crow wings are covered with the snow. The snow is falling, so the crow wings covered with the snow. And the crow shakes itself and the snow falls on the poet. When the snow is fallen on the crow, then the crow is shaking itself. This is the habit of the animal and the bird. How they remove the snow? Just by shaking their body. And the snow is fallen on the poet. So this incidents bring the sudden change in the poet's mind. See, what change it has brought? See, the crow has thrown away whatever was on it. Okay? Now see, he feels that it has saved the rest of the day. Now, this incident has changed the poet's mind and he was feeling now the rest of the day will be okay. Just wipe it out. That means whatever your sad memories are there which are overcoming you. ओके जितने भी जो आपके ऐसे पल हैं जो आपको ओवरकम कर रहे हैं, जो आपके ऊपर भारी हो रहे हैं और वो बहुत आप उन्हें भुला नहीं पा रहे, तो बेटर है कि बेटा उन्हें जाने दो. जैसे उस कवि ने अपने जो बॉडी पे उसके स्नो गिरा वो उसने जाने दिया, ठीक है, उसे हटा दिया. जैसे वो हटा दिया उसको एक साइन ऑफ रिलीफ, हल्कापन महसूस हुआ. वैसे ही यही चीज़ थी जो उस ऑथर ने नोट डाउन किया था, पोएट ने नोट डाउन किया था कि जैसे उसने हटा दिया वैसे मुझे भी जाने देना चाहिए और आगे का जो पल है वो थैंक यू कि वो बच गया, वो खराब नहीं किया, ना ही वो अफेक्ट हुआ. ओके, सो द स्नो इज़ फॉलिंग लाइक द क्रो, ही टू विल शेक ऑफ हिज इनर्शिया. जो उसकी मेमोरीज जो वो रुका हुआ है और कुछ भी नहीं कर रहा, ये सब हटा देगा वो और अब आगे अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएगा, बिजनेस लाइफ में आगे बढ़ जाएगा. ओके, नाउ सी द वे अ क्रो shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. ठीक है. नाउ सी, शुक डाउन डेट मीन्स जो बॉडी को अपने हिलाते हैं, एक जर्क, एक मूवमेंट, दैट इट इज. ओके, डस्ट ऑफ द स्नो किससे कहा गया है? वो फाइन पार्टिकल्स स्नो के. हेमलॉक जो है ये पॉइजनस प्लांट है, ठीक है, जिसपे बहुत ही प्यारे वाइट फ्लावर्स छोटे छोटे खिलते हैं. नाउ हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज्ड, जो उसके मूड को है उसने टोटली चेंज कर दिया था. नाउ सी, सेम सम पार्ट ऑफ द डे, मतलब जो बाकी सारी जो आगे की है वो बच गया, वो सारा दिन बच गया, वो आगे बढ़ने का उसका एक इशारा था. नाउ सी, रूड होता है
कुछ जो बुरे पल होते हैं, जो रिग्रेट जिन्हें आप जो आपको ओवरकम कर रहे होते हैं, उन्हें जाने दो, हटा दो अपने माइंड से। ओके, सी बेटा इसका एक्सप्लेनेशन देखो। द पोएट सेज डैट ही वॉज स्टैंडिंग बीनीथ अ हेमलॉक ट्री। पोएट ये कह रहा था जब वो हेमलॉक ट्री जो पॉइजनस ट्री है जो उसके वो नीचे खड़ा था, अ क्रो शूक ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो। जो क्रो है उसने जो स्नो उसके ऊपर बैठी हुई, जो स्नो गिर गई थी उसके ऊपर, उसने वो उसे हटा दी। हैड डेट हैड फॉलन ऑन इट, और वो स्नो उसके ऊपर आके गिर गई। When this dust fell on the poet, जब वो डस्ट, ये जो स्नो का जो डस्ट है जो पोएट पे गिर गया, अ सडन चेंज, वो अचानक से उसने चेंज लेके आ गया उसके माइंड को, इन हिज मूड, उसके मूड को चेंज कर दिया। इट एंडेड ऑल द रिग्रेट दैट हैड फिल्ड इन हिज माइंड, उसके जो हार्ट में, जो उसके माइंड में जो जितनी बुरी यादें, जो ये नफरत और जितनी बुरी यादें ये सब जो भरी हुई थी, उसको एक बार से बहुत उसने क्या दिखाया कि ये सब छोड़ दो, सब भूल जाओ। ठीक है, दस इट सेव्ड हिज डे, इसलिए उसके दिन को बचाया। एंड एनी फर्दर सैडनेस, अब कोई भी उदासी नहीं होगी। बट द पोएट, टीचर्स के वीडियोस मांग लेता मैम ने, और उन्होंने कुछ अच्छा शी हैजंट कम आई थिंक। अब जाने के बाद एक रोटी नाउ सी, खाऊंगी और रात को दूध पीऊंगी। यहाँ बैठी नहीं है, कहाँ गई? परेशानी है, यहाँ पे कहाँ गई? मुझे भी नहीं है। नाउ देखो, पास में गई हो? सर के पास में नहीं है। फिर कहाँ गई? आपको नहीं नाउ पता? सी, ये कैसे हो गया? ऐसा नहीं हो गया, बात कर रहे हैं। बट द पोएट हैज़ यूज अ हेमलॉक ट्री। जो बेटा पोएट ने देखो एक एक चीज़ को यूज़ किया है, जो ट्री को भी यूज़ किया है, क्रो को भी यूज़ किया है, और स्नो को भी यूज़ किया है। देखो उसने कैसे यूज़ किया है। देखो जो सैडनेस वाला डे था, उस चीज़ को जो रिमूव कर दिया, वो चीज़ उसने यूज़ किया है। बट द पोएट हैज़ यूज द हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री क्यों, मतलब एक पॉइजनस ट्री है, डेट मीन्स जो उसकी कड़वी यादें। ठीक है, द क्रो, द डस्ट ऑफ द स्नो एंड द क्रो शेकिंग ऑफ, जो क्रो को शेकिंग ऑफ है, ये सब उसने यूज़ किया एज अ सिंबल में। द हेमलॉक इज अ पॉइजनस ट्री, जो पॉइजनस ट्री है, इट हैज़ बीन यूज्ड हेयर दो सिंबल ऑफ पोएट सैड माइंड, जो पोएट के सैड माइंड है उसको सिंबल किया गया है। डेट कैन बी नो लेस देन अ पॉइजन ऑफ अ बॉडी, वो एक बॉडी के लिए पॉइजन ही है बेटा, जो पोएट का जो सैड माइंड है। क्योंकि जब हमारा माइंड सैड होता है तो हमारी उस हर चीज़ पे इफेक्ट होता है, हमारी बॉडी पे भी इफेक्ट होता है, प्लस हमारी वर्किंग पे भी इफेक्ट होता है। अगर आप देखोगे, अगर आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा उदास हो तो वो पूरा दिन आपका बहुत ऐसा जाएगा, उस मतलब वो आपकी हर एक एक्टिविटी उस पर इफेक्ट होती है आपकी। इवन आप नाउ इट हैज़ बीन यूज्ड हेयर, तो ये उस चीज़ को, पॉइजन जो है वो उसकी बॉडी को और उसके सैड माइंड को डिपिक्ट कर रहा है। नाउ द क्रो इज ऑफन टेकन एज अ साइन ऑफ इल ओमेन। जो क्रो है वो नेगेटिविटी का होता है, क्योंकि वो ब्लैक कलर का है ना, तो वो उसके नेगेटिव मतलब नेगेटिव उसको थॉट्स उसको देख रहे हैं। द पोएट हैज़ यूज्ड, ये सिंबल उसके सैड थॉट्स को सिंबल, जो क्रो है वो सैड थॉट्स को सिंबल कर रहा है, जो उसकी कड़वी यादें हैं उस चीज़ को कर रहा है। डेट हैड सेटल्ड, जो उसके माइंड में बस चुकी हैं। ठीक है, एंड द क्रो हैड सेटल्ड ऑन द हेमलॉक ट्री, यानी कि जो उसकी बॉडी पे, जो उसके माइंड पे जो ये कड़वी यादें जो घर कर चुकी हैं, ये चीज़, द डस्ट ऑफ स्नो हैज़ सेटल्ड, और ऑन द क्रो इज अ सिंबल ऑफ इनर्शिया दैट पोएट सैड थॉट्स हैव ब्रॉट अबाउट इन हिम। जो, तो ये जैसे स्नो, जैसे कड़वी यादें से धूल पड़ चुकी है, ठीक है, ऐसे ही ये सब चीज़ें, कड़वी यादें उसके माइंड में बस चुकी हैं। ठीक है, और बाकी सब अच्छी चीज, मतलब कुछ भी उसे नहीं दिख रहा। एंड द क्रो शेकिंग ऑफ हिज डस्ट, जो क्रो ने जैसे अपने डस्ट को छोड़ दिया, अपने से अलग कर दिया शेक करके, तो ये चीज़ कर रहा है कि वो अब नई यादों को एक्सेप्ट कर रहा है। तो वैसे ही वो पुरानी यादों को छोड़ के अब नई भरी यादों को एक्सेप्ट करेगा।
थॉट है ब्रॉट अबाउट ए नेम, जो उसकी नई भरी यादें आएंगी. एंड द और हिज रिग्रेट एंड सेव्स हिज माइंड, जो जितनी भी पुरानी यादें हैं, जो कड़वी भरी यादें थी, ये सब छोड़ के अब वो नई यादों को एक्सेप्ट करेगा और आगे बढ़ेगा. ठीक है. तो दस वी सी डेट एवरी वर्ड, इसलिए यानी कि जो हर एक वर्ड है उसके कोई ना कोई सिंबल, उसके कोई ना कोई सिग्निफिकेंट है. नाउ सी व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड, हाउ हैज द poet's mood change. Now see, a dust of snow is fine particles of snow. Dust of snow क्या है? जो बर्फ़ की जो छोटी छोटी है ना फाइन पार्टिकल्स है स्नो को, उसको क्या गया है डेट सेटल लाइक डस्ट. जैसे एक मिट्टी एक किसी चीज़ पे आप देख सकते हो ना, जैसे हमारे फर्नीचर पे डस्ट हो जाती है, मिट्टी हो जाती है हल्की हल्की, उस चीज़ को कहा गया है. वेरियस ऑब्जेक्ट्स पे ड्यूरिंग स्नोफॉल, स्नोफॉल के टाइम पे जैसे बर्फ़ उस चीज़ों को ढक देती है, जब बर्फ़ गिरती है तो बहुत सारी चीज़ें ढक जाती है ना. तो जैसे ही उसने जैसे पुरानी यादें जो थी वो. सो अ क्रो पर्च्ड ऑन अ हेमलॉक ट्री शेक्स ऑफ द स्नो डस्ट दैट हैज सेटल्ड. जो क्रो जो हेमलॉक ट्री पे बैठा हुआ है, ठीक है, शेक्स ऑफ द स्नो, उसने स्नो को झटका दिया, डस्ट दैट हैज सेटल्ड ऑन हिम, जो डस्ट उसके ऊपर था, जो स्नो उसके ऊपर थी, उसने झटका दिया. दिस डस्ट फॉल्स ऑन द पोएट, ये डस्ट जो है वो पोएट के ऊपर गिर गया. दिस लिटल इंसिडेंस ब्रिंग्स अबाउट अ सडन चेंज, ये छोटा सा इंसिडेंस जो है वो एक सडन चेंज लेके आ गया. इन द पोएट्स मूड, ये पोएट के मूड पे एक सडन चेंज लेके आ गया. नाउ द पोएट, कुबेर का खजाना है, उसमें से कुछ नहीं मिलता. सो दिस डस्ट फॉल्स ऑन द पोएट, तो वैसे ही पोएट के माइंड में जो बहुत सारी कड़वी यादें जो हैं उन्होंने घर कर लिया था. ठीक है. दिस लिटल इंसिडेंस ब्रिंग्स अबाउट अ सडन चेंज इन द पोएट्स मूड, और ये इंसिडेंस होते ही जैसे एक क्रो ने वो शेक किया अपनी बॉडी को और जो स्नो हटा दी, वैसे ही अब ये जो पोएट के माइंड में एकदम से ट्रैक किया कि जैसे उसने हटा दिया वैसे ही मैं भी अपनी कड़वी यादें जो हैं छोड़ के अब आगे बढ़ना चाहिए. सो दिस लिटल इंसिडेंस ब्रिंग्स अबाउट अ सडन चेंज, ये चेंज लेके आया इन द पोएट्स मूड, पोएट्स के मूड में चेंज लेके आ गया. नाउ द पोएट शेक्स ऑफ हिज सैड, जो पोएट्स भी है ये अपनी सैड जो थॉट्स हैं, जो कड़वी यादें हैं, उन्हें छोड़ देता है. एंड इज फिल्ड विद रिन्यूड एनर्जी, और नई एनर्जी के साथ में आगे बढ़ता है. हाउ डज फ्रोस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोम, अब फ्रोस्ट जो है रॉबर्ट फ्रोस्ट, उसने नेचर को कैसे प्रेजेंट किया है. फ्रोस्ट डज नॉट आइडियलिस्टिक नेचर, जो फ्रोस्ट जो है वो नेचर को एज अ आइडियलाइज नहीं बता रहा. ठीक है. दैट मीन्स हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर आर रियल एंड बेस्ड ऑन माइन्यूट ऑब्जर्वेशन, जो उसका डिस्क्रिप्शन है नेचर से रिलेटेड वो रियल वाला है. ठीक है. और वो एक एक बहुत छोटे छोटे पल को उसने नोट डाउन किया है. फ्रोस्ट सीज डीप सिम्बॉलिकल मीनिंग्स इन ईच लाइन, फ्रोस्ट की हर एक लाइन जो एक नेचर का जो इंसिडेंस है वो उसकी बहुत गहरी मीनिंग्स है. अगर आप देखोगे हर एक चीज़ वो सिम्बॉलिक, डेट मीन्स सिंबल के तौर पे यूज़ कर रहा है. वन कैन इंटरप्रेट दी सिम्बल्स इन वंस ओन वे, जिसको बेटा हर एक का एक अपना तरीका होता है. वैसे अगर आप देखोगे तो ये जो पोम है रॉबर्ट फ्रोस्ट की, इसका हर एक का एक सिंबल रिप्रेजेंटेशन है. वन कैन सी नेचर एज अ फ्रेंड और एज एन एनिमी, अगर देखा जाए तो हम नेचर को एज अ फ्रेंड के जैसे भी ले सकते हैं, एज अ एनिमी के जैसे भी ले सकते हैं. जैसे एक रॉबर्ट फ्रोस्ट ने यहाँ पे जो एक धूल है, जो डस्ट है, और जो क्रो है और जो हेमलॉक ट्री है, उसको एज अ अच्छी चीज़ें में यूज़ किया है, जबकि हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री होता है. ठीक है.
और तो यहाँ पे जैसे कड़वी यादों के यूज़ में लिया हुआ है, और जो डस्ट है जिसको सब क्लीन कर देते हैं। तो देखो इस इंस्टेंस को देखो उसने कैसे किया कि कड़वी यादें हमें भुला देनी चाहिए, जबकि क्रो यूज़ किया है। जो क्रो, बेटा कोई भी अपने पोम में क्रो नहीं लेता क्योंकि वो एक बैड तरीके से माना गया है, ठीक है, एविल थॉट्स लेके आता है इसीलिए। सो व्हाट आर द बर्ड्स डेट आर यूजुअली नेम्ड इन द पोम्स। जो बर्ड्स जैसे जो यूजुअली नेम्स होते हैं पोम में। डू यू थिंक अ क्रो इज़ ऑफन मैंशन इन द पोम्स। क्या पोम्स में आपके क्रो मेंशन होते हैं? नो। वट इमेजेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक। जब क्रो को हम देखते हैं तो देखो बेटा, क्रो जो है हमेशा एविल थॉट्स मतलब बुरे ख्याल के बारे में ही याद दिलाता है। The birds usually named in the poems are known for their beauty और sweet song। जो नॉर्मली जो पोम्स बनती हैं या तो बर्ड्स की ब्यूटी पे बनती हैं या उनके मधुर गाने पे बनती है, जो वो स्वीट सॉन्ग गुनगुनाती हैं। दे इंक्लूड कौन सी होती है? जैसे नाइटिंगेल्स की जो उसकी जो गाने की है बेटा, नाइटिंगेल जो गाती है उसकी गाती बहुत स्वीट वॉइस है, उसको बोला गया है कुकू, रॉबिन, स्वैंस, इनकी सबकी ब्यूटी या इस चीज़ के लिए फेमस है। अ क्रो इज़ नॉट, क्रो तो कभी हम मेंशन ही नहीं करते किसी पोम में, क्योंकि बिकॉज इट इज़ नाइदर ब्यूटीफुल नॉर इट इज़ अ सॉन्ग बर्ड। क्योंकि ये ब्यूटीफुल भी नहीं है, नाइदर ये सो बेटा जो क्रो को कोई लेता नहीं क्योंकि वो हमारे अंदर जो है एविल इमेज लेके आती है, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ अ हैमलॉक ट्री। हैमलॉक ट्री क्या है बेटा? एक पॉइजनस ट्री है। वाई डजंट द पोएट राइट अबाउट अ मोर ब्यूटीफुल ट्री सच एज मैपल एंड ओक और अ पाइन। ये ब्यूटीफुल ट्रीज हैं बेटा जिनकी लुकिंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन देखो फिर भी द पोएट्स वांट टू क्रिएट एन एटमोसफियर। क्योंकि पोएट जो है ना बेटा, ये एक स्टिलनेस मतलब एक जगह स्टैग्नेंट, जैसे हम बुरे ख्यालात आते हैं या हमारे माइंड्स में जो एविल थॉट्स होते हैं वो हमें उस पल में बांध के रख लेते हैं, रोक के रख लेते हैं और हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये उस चीज़ को शो करना चाहता है। तो ये इसलिए जो पोएट है वो एटमोसफियर में सैडनेस और स्टिलनेस, एक स्थिरता लाना चाहते थे। इन सच अ एटमोसफियर अ मैपल और ओक ट्री जो ब्यूटी के लिए फेमस है, तो वो प्लेस चेंज कर देते। ओके, सो जो पोएट है ये अपनी राइटिंग के थ्रू एक सैडनेस, एक कड़वे ख्यालात, जो हमारे अंदर कड़वी यादें होती हैं और हम जिसके कारण रुक जाते हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाते, उन्हीं यादों को लेके बैठे रहते हैं, तो ये चीज़ दिखाना चाहते थे। सो हैमलॉक इज़ अ पॉइजनस ट्री। द पोएट वॉन्ट्स टू क्रिएट एन एटमोसफियर ऑफ सैडनेस, stillness. In such an atmosphere, a maple, an oak or a pine would have looked out of place. ठीक है? So, what do the crow and hemlock present joy को और sorrow को? What does the dust of the snow at the crow shakes of hemlock tree stands for? देखो बेटा, द क्रो एंड द हेमलॉक ये जो दोनों हैं ये सौरों को स्टैंड करते हैं, दुख को स्टैंड करते हैं। द डस्ट ऑफ स्नो स्टैंड्स फॉर द डेथ और इनर्शिया। जो स्नो जो डस्ट है ना वो क्या करती है? ढक देती है हमें। तो ये उस चीज़ को मतलब जो हम जो रुक जाते हैं उस पल, जो हम अपने अंदर जो ख़त्म हो जाते हैं, हमारी इनर पॉजिटिविटी जो ख़त्म हो जाती है, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द क्रो शेकिंग ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द ट्री स्टैंड्स फॉर रिन्यूड लाइफ। और जो क्रो है जैसे वो शेक करता है, वो रिप्रेजेंट करना चाहता है कि आगे जो पॉजिटिविटी पे बढ़ो, ठीक है, पॉजिटिविटी लाओ, एनर्जी लाओ और जो बुरी यादें उन्हें छोड़ के आगे चलो। So now see, now have there been times when you felt depressed or hopeless? बहुत सारी ऐसे हमारे पल होते हैं जहाँ पे हम रुक जाते हैं, है ना, तो ये उसी में है। तो बहुत सारी आती है बेटा यादें। सो
हर एक का होता है, ये नहीं है कि आपका होता है, हर एक की ऐसी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट होता है जहाँ पे वो पकड़ के उसको डिप्रेशन में चला जाता है, लेकिन हमें उसे छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए और पॉजिटिविटी को लाना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, उस पल को लेके खड़े हो जाते हैं, वहीं पे खड़े हो जाते हैं और आगे शुरू ही नहीं हो पाते। सो द वे ऑफ अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। देखो बेटा, यहाँ पे जो है नेम द पोम, कौन सी पोम है, डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, ठीक है। व्हाट डिड द क्रो डू, क्रो क्या कर रहा है बेटा, वो शुक कर रहा है अपनी बॉडी को, जो डस्ट है स्नो जो उसके ऊपर बैठी है उसको हटाना चाहता है और वो पोएट पे गिर देता है। द क्रो वॉज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ, किसके ब्रांच पे, ऑफ द हेमलॉक ट्री। और द राइमिंग स्कीम क्या है बेटा, ए बी ए बी। ओके, देख सकते हैं आप, क्रो, स्नो, मी, ट्री, ये राइमिंग वर्ड्स हैं। जो राइमिंग स्कीम क्या है आपकी, ए बी ए बी। सो व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ द स्नो क्या है, फाइन पार्टिकल्स स्नो के जो स्काई से नीचे आते हैं, ठीक है, और अर्थ के वेरियस ऑब्जेक्ट्स पे गिर जाते हैं, और क्रो जो है उसी चीज़ को शेक ऑफ करता है। Now see, so what do the crow and hemlock represent, joy और sorrow। hemlock किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, sorrow को, ठीक है, और shook down किस चीज़ को कर रहे हैं, shook down कर रहे हैं बेटा jerk and cast off, मतलब जो हम रुक जाते हैं और आगे बढ़ो, एकदम से हिलाया, जर्किंग मतलब एक बार से कई बार हम सोते हैं हमें एक झटका सा लगता है उस चीज़ को कर रहे हैं, एकदम से बॉडी मूवमेंट में हुई, ठीक है। सो व्हाट चेंज केम इन द पोएट्स मूड, सॉरो से जॉय पे, ठीक है, ये पोएट का मूड था। एंड व्हाट हैड बीन सेव्ड, क्या सेव्ड हो गया बेटा, बाकी सारा दिन उसका सेव्ड हो गया। दीप्ति मैम के पास है सारे कंप्यूटर में। So I hope till here it is clear to you. Now describe briefly the scene described by the robot frost dust of the snow में कि एक cold day है, ठीक है, स्नो गिर रही है, the snow is falling and fine particles of snow fall on hemlock tree पे गिरते हैं। The poet is standing beneath his tree, poet जो है ट्री के नीचे है, and a crow shakes off some dust on the poet, जो क्रो है वो अपने ऊपर जो डस्ट है उसको शेक्स ऑफ करके पोएट पे गिर जाता है। सो इट ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज ऑफ मूड इन द पोएट्स हार्ट, जो ये है ये पोएट के मूड को बिल्कुल चेंज कर देता है। सो हाउ डज रॉबर्ट फ्रॉस्ट सेज हिज मूड हैज चेंज, कैसे करते हैं, सॉरो एंड डिस्पेयर हैड सेटल्ड ऑन द पोएट्स हार्ट, जो सॉरो और जो दुख जो है, डिस्पेयर होता है बेटा दुख, जो उसके मन में जो घर कर चुका है, ठीक है। अ क्रो शुक ऑफ सम स्नो, जो क्रो है वो स्नो जो है शुक ऑफ करता है फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री ऑन हिम, जो हेमलॉक जो पॉइजनस ट्री से जैसे वो गिरता है। इट गेव द पोएट अ सडन थॉट, तो अचानक से पोएट ने सोचा, ही टू कुड शेक ऑफ हिज सॉरो, क्यों ना वो अपने ही दुख जो हैं वो हिला के वो ख़त्म करके वो आगे बढ़ जाए और खुशी को आने दे। व्हाट इज़ द सब्सटेंस ऑफ दिस पोम, सब्सटेंस क्या है इसके अंदर, देखो बेटा, द पोएट वॉज स्टैंडिंग बीनीथ अ हेमलॉक ट्री के नीचे, ठीक है। अ क्रो शुक ऑफ सम डस्ट ऑफ पोएट, डस्ट ऑन द पोएट, द पोएट सैड हार्ट एट वंस एक्सपीरियंस्ड अ चेंज, जो एक सैड हार्ट है उसने अचानक से चेंज महसूस किया। सो बेटा देखो, नाउ
एंड बी फुल ऑफ चेयर वंस अगेन। तो आगे हमें जो सौरो है उसे शेक ऑफ करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। What is the substance of this poem? See? तो पोएट को भी बेटा ये जो एक्सपीरियंस है ऑफ द सैडनेस एंड सेव द रेस्ट ऑफ द डे, जो रेस्ट ऑफ द डे खराब होने से बच गया है। एक्सप्लेन द सिंबल यूज बाय, इसके अंदर कौन कौन से सिंबल है। एक हैमलॉक है, वो सिंबल है पोएट सैड हर्ट का, ठीक है। डस्ट है सौरो का, ठीक है, जो सेटल हो चुकी है पोएट के हार्ट पे। एंड द क्रो शेक ऑफ, जो क्रो शेक ऑफ करता है वो पोएट का एक्सपीरियंस है, उसके एक्सपीरियंसेस इन हिज हार्ट, तो वो हार्ट में एक्सपीरियंस करता है। ओके, नाउ सी। So I hope till here it is clear to you. So rest part I will explain tomorrow.